बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उमर कैसे हैं आप लोग? How are you my people, my family? Today we are going to install Oracle Apex 22.2 and ORDS 25.1 with database 19c pluggable in Windows 10 इंशाल्लाह। आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह से Oracle Apex 22.2 और ORDS 25.1 को database 19c pluggable के साथ Windows 10 में इंस्टॉल किया जाता है। Create folder in C drive with the name 19c_22.2 and under this folder we further create 3 folders with the name db, ords and ordsconf respectively। सबसे पहले हम C drive के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे 19c_22.2 के नाम का, और उस फोल्डर के अंदर हम मजीद 3 फोल्डर बनाएंगे db, ords और ordsconf के नाम के। Under ordsconf folder, we create one folder with the name config। ordsconf फोल्डर के अंदर हम एक फोल्डर बनाएंगे config के नाम का, डाउनलोड Oracle database 19c। तो दिस लिंक Oracle database 19c को इस लिंक के जरिए से डाउनलोड कर लें। Unzip Oracle database 19c in this path, D Oracle database unzip करेंगे 19c database को इस पते पे डाउनलोड ORDS 25.1 तो दिस लिंक ORDS 25.1 को इस लिंक के जरिए से डाउनलोड कर लें। Unzip ORDS 25.1 in ORDS folder which we have just created under 19c_22.2 folder in a C drive. So we do not need to copy and paste ORDS folder। ORDS 25.1 के फोल्डर को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे 19c_22.2 के फोल्डर के अंदर, जो कि C drive के अंदर हमने भी बनाया है। तो हमें ORDS के फोल्डर को कॉपी करके उसको एक्सट्रैक्ट करना नहीं पड़ेगा। डाउनलोड Oracle Apex 22.2 तो इस लिंक Oracle Apex 22.2 को इस लिंक के जरिए से डाउनलोड कर लें। Unzip Oracle Apex 22.2 in 19c_22.2 folder under C drive which we have just created. So we do not need to copy and paste Apex folder। Apex 22.2 के फोल्डर को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे 19c_22.2 के फोल्डर के अंदर जो हमने अभी बनाया है। तो हमें Apex के फोल्डर को कॉपी करके उसको चस्पा करना नहीं पड़ेगा। ओपन कमांड प्रॉम्प्ट एंड चेक जावा वर्जन। कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे और जावा का वर्जन देखेंगे। जावा वर्जन विच वी आर यूजिंग इज जावा 24.1। जावा का जो वर्जन हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो जावा 24.1 है। फॉर ORDS 22.1 to 25.1 we need to install at least Java 11। ORDS 22.1 से लेके ORDS 25.1 तक के लिए हमें कम से कम Java 11 को
इंस्टॉल करना पड़ता है अपने सिस्टम में। रन डेटाबेस सेटअप विद एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स। डेटाबेस का सेटअप चलाएंगे एडमिनिस्ट्रेटर के राइट से। Option will be create and configure a single instance database. Hit next button. Option create and configure a single instance database का रहेगा। नेक्स्ट का बटन दबा दें। ऑप्शन विल बी डेस्कटॉप क्लास। हिट नेक्स्ट बटन। ऑप्शन डेस्कटॉप क्लास आएगा। नेक्स्ट का बटन दबा दें। ऑप्शन विल बी यूज विंडोज बिल्ट इन अकाउंट। हिट नेक्स्ट बटन। यूज विंडोज बिल्ट इन अकाउंट ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे और नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। Yes. Assign global database name, password, confirm password and pluggable database name from your choice. Moreover, change path while hitting browse button. We will give a path till DB folder which we have just created under 19C_22.2 folder under C drive, and then hit next button. Global database name देंगे, password देंगे, confirm password देंगे अपनी मर्जी से, और इंस्टॉलेशन का पता देंगे डीबी के फोल्डर तक का जो हमने अभी बनाया है 19C_22.2 के फोल्डर के अंदर, और नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। हिट इंस्टॉल बटन। इंस्टॉल का बटन दबाएंगे। Oracle database 19C has installed. Oracle database 19C has installed. Hit close button। Oracle database 19C जो है इंस्टॉल हो चुका है। क्लोज का बटन दबा दें। Open command prompt and reach where Apex folder is available. कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे, वहां जाएंगे जहां Apex का फोल्डर मौजूद है। Run this command. Connect with sysdba। कनेक्ट होंगे sysdba से। Now we will find whether our pluggable database is in read-write mode or not while running this command. अब हम ये कमांड चला के देखेंगे कि हमारा प्लगेबल डेटाबेस जो है वो रीड राइट मोड में है या नहीं। So it is in read write mode। ये read write mode में है। In case if it is not in read write mode, then we have to change its mode into read write mode first while running this command and then move forward। अगर ये रीड राइट मोड में नहीं होता तो पहले हम उसको रीड राइट मोड में लेके आते ये कमांड चला के और फिर आगे बढ़ते। Run this command through PDBS। We run this command before every Apex script in order to make sure whether we connect with pluggable database or not. If we connect with a pluggable database, we can run Apex script. If not, then we have to connect with pluggable database first while running this command and then run Apex script। अब हम शो PDBS की कमांड चलाएंगे। शो PDBS की कमांड हम तमाम Apex के स्क्रिप्ट्स को चलाने से पहले चलाते हैं ताकि ये तसल्ली कर लें कि हम प्लगेबल डेटाबेस से कनेक्ट हैं या नहीं है। अगर हम प्लगेबल डेटाबेस से कनेक्ट हैं तो हम Apex का स्क्रिप्ट चलाएंगे। अगर हम प्लगेबल डेटाबेस से कनेक्ट नहीं है तो पहले हम प्लगेबल डेटाबेस से कनेक्ट होंगे ये कमांड चला के और फिर Apex का स्क्रिप्ट चलाएंगे। और जब हम ये कमांड चलाएं तो हम ये तसल्ली कर लें कि सेशन ऑल्टर लिखा हुआ आ गया है। अगर सेशन ऑल्टर लिखा हुआ नहीं आया तो पहले हमें सिस के यूज़र से कनेक्ट होना पड़ेगा और फिर हम ये कमांड चलाएंगे।
And when we run this command, when we have run this command, we make sure that session altered appear. If not, then we have to connect with the sys user first and then run this command. Install Apex by running this command. अब Apex को install करेंगे. ये command चला के Oracle Apex 22.2 has installed. Oracle Apex 22.2 has installed हो चुका है. Run this command. Username will be admin. Provide email and password from your choice. ये command चलाएंगे. Username जो है वो admin रहेगा. email और password आप अपनी मर्जी से दे दें. Run this command, and before we run this command we make sure that we connect with the sys user. If not, then we have to connect with the sys user first and then run this command. अब हम ये कमांड चलाएंगे, लेकिन ये कमांड चलाने से पहले हम ये तसल्ली कर लेंगे कि हम sys के यूज़र से कनेक्ट हैं. अगर हम sys के यूज़र से कनेक्ट नहीं है तो पहले हमें sys के यूज़र से कनेक्ट होना पड़ेगा. तो हम sys के यूज़र से कनेक्ट हैं. We connect with the sys user. Run this command. Provide password for Apex listener and Apex REST public user from your choice. अब ये कमांड चलाएंगे, पासवर्ड देंगे Apex listener और Apex REST public user को अपनी मर्जी से. एग्जिट कमांड प्रॉम्प्ट से बाहर निकल आए. ओपन कमांड प्रॉम्प्ट with administrator rights and reach where bin folder is available under ORDS folder. कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर के राइट से वहां जाएंगे जहां बिन का फोल्डर मौजूद है, ORDS के फोल्डर के अंदर. रन दिस कमांड. ये कमांड चलाएंगे. ऑप्शन विल बी एस हिट एंटर बटन. ऑप्शन एस रहेगा, एंटर का बटन दबाएं. ऑप्शन विल बी 1 हिट एंटर बटन. ऑप्शन 1 रहेगा, एंटर का बटन दबाएं. ऑप्शन विल बी लोकल होस्ट हिट एंटर बटन. ऑप्शन लोकल होस्ट रहेगा, एंटर का बटन दबाएं. My port is 1521, so I will hit enter button. If your port is 1521, then you will also hit enter button. If your port is different, then define your port first and then hit enter button. मेरी पोर्ट 1521 है, इसलिए मैंने एंटर का बटन दबाया. अगर आपकी पोर्ट भी 1521 है तो आप भी एंटर का बटन दबाएं. अगर आपकी पोर्ट मुख्तलिफ है तो पहले आप अपनी पोर्ट लिखें और फिर एंटर का बटन दबाएं. प्रोवाइड प्लगेबल डेटाबेस नेम. प्लगेबल डेटाबेस का नाम देंगे. Enter administrator username which will be sys. Provide password for it. Administrator username लिखेंगे जो कि sys है और उसको पासवर्ड देंगे. Select 3 hit enter बटन. 3 को मुंतखब करेंगे, एंटर का बटन दबाएंगे.
सेलेक्ट एस, हिट एंटर बटन, एस को मुंतखब करेंगे, एंटर का बटन दबाएंगे। प्रोवाइड पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड फॉर ORDS पब्लिक यूजर फ्रॉम योर चॉइस। ORDS पब्लिक यूजर को पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड देंगे मर्जी से। सेलेक्ट 9, हिट एंटर बटन, 9 को मुंतखब करेंगे, एंटर का बटन दबाएंगे। कॉपी इमेजेस फोल्डर, कॉपी करेंगे इमेजेस के फोल्डर को इस पते से फ्रॉम दिस पाथ एंड पेस्ट इट टू दिस पाथ, और इस पते पे जिस पर करेंगे। Provide a path to Apex static resource location till images folder very carefully। अब हम Apex static resource location को पता देंगे images के फोल्डर तक का बहुत एहतियात से। We use here // instead of // हम यहाँ पे // का इंतखाब करेंगे // की बजाय। If you want any other changes you can make it, however we satisfy with these changes। अगर आपको कोई और तब्दीली करनी है तो आप कर सकते हैं, हम इन तब्दीलियों से मुत्तफिक हैं। सेलेक्ट ए, हिट एंटर बटन, ए को मुंतखब करेंगे, एंटर का बटन दबाएंगे। When Oracle REST data services initialize a pair, we can access Oracle Apex 22.2 through this link। जब Oracle REST data services initialize लिखा हुआ आ जाएगा तो हम Oracle Apex 22.2 को इस्तेमाल कर सकते हैं। Do not close this command prompt because if we close this command prompt we cannot access Oracle Apex 22.2। इस कमांड प्रॉम्प्ट को बंद मत करिएगा क्योंकि अगर हमने इस कमांड प्रॉम्प्ट को बंद कर दिया तो हम Oracle Apex 22.2 को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। Oracle Apex 22.2 has installed। Oracle Apex 22.2 जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। Open command prompt with administrator rights and reach where bin folder is available under ORDS folder। कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे और वहां जाएंगे जहां बिन का फोल्डर मौजूद है ORDS के फोल्डर के अंदर, और वहां जाने के बाद ये कमांड चलाएंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।